Jai Hind everyone, I am Prabhat Kumar and I welcome you all to PYQ Academy. In today's video, I am going to discuss the solutions of 66th BPSC, in which I will be discussing the science portion. So before starting the questions, let me discuss that today I am starting a new series related to PYQs of BPSC examination. That means the civil services examination conducted by Bihar Public Service Commission. So the reason behind starting this new series is that the students who want to prepare for this examination in English medium, so it has been seen that there is a lack of quality content in English medium, although there is a very good content present in the market as well as in the YouTube itself uh, when it comes to the content in Hindi medium. Okay, still means I am also following various channels who are providing a quality content in Hindi language, but I am also a student who is preparing for this exam in English language. So I know what all problems the English medium students are facing. Okay, and these are all students who are living away from the main city of Patna, where all the materials are available. So other than that, uh, I had cleared the PT of this examinations two times, once in 64th and in 65th. But due to busy in other UPSC examinations, I was not able to uh, give the mains. Okay, although I gave the 64th mains, but I didn't clear it, and in 65th I couldn't give the mains examination. So, the reason behind clearing the BPSC exam two times was the previous year questions. I prepared a very little, but I was able to score very good marks. Okay, so I think that this PYQ approach is going to help you so that I am here in front of you. Okay, so I will be taking the help of English language. Okay, where it is required, I will be using Hindi language. Okay, but you can uh, but the questions will be in the English. Okay, so let's start our discussion. The first question is the radiation used in treatment of muscle ache are. So the options are infrared, microwave, UV, X-ray. Okay, so पहले क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको अगर आपके मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो आप इनमें से किस रे का यूज करोगे, ठीक है. So if we have to eliminate options, we can definitely eliminate these two options, X-ray and UV, because these two rays has the ability to penetrate into our skin. Okay. Now comes to infrared and microwave. So when we will compare these two rays, so infrared is having less capacity to penetrate. So our answer is option A. Okay. Let's move to next question. The total resistance of a circuit having two parallel resistors is 1.403 kilo ohm. If one of the resistors is 2 kilo ohm, then the other resistor will be okay. So this is a numerical question. Let's solve it. So we know that for resistors in parallel, if two resistors R1 and R2 like this, okay, are in parallel, so the combined resistor will be this one. Okay, so now apply this formula. अगर हम इस तरह से करते हैं तो रजिस्टर पहला रजिस्टर हमें एक रजिस्टर दे रखा है 2 किलो ओम का है, ठीक है, उसको 2 ले लेते हैं. दूसरा रजिस्टर हमें नहीं पता है तो उसको स्मॉल आर रखते हैं और जो इसका इक्विवेलेंट है वो है 1.403, ठीक है. तो अगर हम इसको 1 आर करते हैं, इसको 1.403, ठीक है, इसको 1.4 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10/14 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा. अगर इसको हम यहाँ पर 14 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 10 माइनस 7 यानी कि 3/14. तो ये अगर 1/r 3/14 हो रहा है तो r को हम पलट देते हैं तो ये इधर भी क्या होगा 14/3 हो जाएगा. और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 12 4.666 समथिंग आएगा. इसको हम 4.7 रफली ले सकते हैं, ठीक है. तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4.7 किलो ओम. ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था, बस आपको ये फॉर्मूला अगर आता है तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है, अगर आप किसी सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं, यू हीट सेमीकंडक्टर, ओके, सो फर्स्ट थिंग you should know that a semiconductor, okay, semiconductor behaves like conductor as well as insulator. So it will behave like a conductor at high temperature and it will behave like insulator at low temperature, okay. So when you will provide heat, okay, जब आप इसको heat provide करेंगे then it will behave like a conductor, okay, that means it can easily conduct electricity. So so the resistance is opposite of conductance, so definitely if conductance increases then resistance will decrease, so the resistance of semiconductor will decrease when you will increase or when you will heat it, okay. So our answer is option B. Next question. Faraday constant depends on the amount of electrolyte, depends on the current passed in electrolyte, no, depends on volume of the solvent in which the electrolyte is dissolved. Answer is option D, it is a universal constant, okay, just remember this question, it is a factual question. Next, light year is a unit of, a very easy question, or I can say a question which is repeated in various examinations. The answer is option C. Let me tell you what is light year. Light year is a distance traveled by light in 1 year, in a time period of 1 year, okay. So अगर कोई एक सोर्स लाइट प्रोड्यूस करती है और उससे 1 साल तक छोड़ दिया जाए तो ये लाइट जो है 1 साल में कितनी दूर तक पहुंच जाएगी, उस दूरी को लाइट ईयर कहते हैं, दैट मीन्स द डिस्टेंस कवर, तो ये डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है, और ये जनरली हम लोग स्टार्स वगैरह के लिए यूज करते हैं. सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. Next question, which one of the following does not change when light travels from one medium to another medium, okay. So light को अगर हम एक मीडियम से दूसरा मीडियम ट्रेवल कराएंगे, so let's take one medium air and another medium water, okay. So let's take a ray of light and it will bend something, okay. So definitely velocity, okay, velocity will change. जब ये हवा से पानी में जाएगी तो डेंसिटी चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, ठीक है. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हवा और पानी दोनों का अलग होगा. अब आते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे. Although wavelength and frequency are inversely proportional to each other, but here the answer is option C, that frequency will never change due to changing medium. So answer is option C, okay. The velocity of electromagnetic wave, whenever they are asking about electromagnetic wave, you have just realized or imagine about light, okay. So light, because light is an example of electromagnetic wave, so that means indirectly it is asking about the speed of light. So the speed of light is nothing but 3 into 10 to the power 8 meter per second. So answer is option A. Next question. The first man who placed his foot on the moon. So it is a very easy question. Answer is option B, Neil Armstrong. Next question. The number of neutrons in the nucleus of plutonium nuclide, okay. So it is given here, it is a plutonium, and आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम नीचे में मार्क करते हैं ये जो हमेशा होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये हमेशा एटॉमिक मास होता है, ओके. एंड अदर थिंग, मास नंबर, okay, mass number is equals to number of neutrons plus number of protons. So by this formula you can get the number of neutrons. So mass number here is 242 and neutron is, we have to find it, and proton is 94. So by subtracting you will get neutron as 148. So your answer is option B. Next question. The highest viscosity among the following. So what is the meaning of viscosity? Simple meaning of viscosity is opposite to ease of flow. मतलब कितनी मुश्किल से कोई भी चीज फ्लो करती है, तो अगर
किसी चीज में मुश्किल ज्यादा हो रही है मतलब उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, और आसानी से फ्लो हो पा रहा है मतलब उसमें विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो हमें पूछा क्या, द हाईएस्ट विस्कोसिटी, मतलब इनमें से विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किस में है, मतलब कौन सबसे धीरे फ्लो करेगा। तो अगर हम कंपेयर करें, वाटर, एयर, सबसे सबसे आसानी से एयर फ्लो करता है, फिर वाटर, फिर ब्लड, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कुछ मिक्स होगा, और सबसे धीरे फ्लो करेगा हनी, बिकॉज हनी हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज अ प्योर सोर्स ऑफ, ठीक है, अगर आपको गेस करने को कहा जाए, ठीक है, तो अगर विटामिन सी किससे मिलता है, लेमन, खट्टा होता है, मिल्क खट्टा होता है क्या, तो आप गेस वर्क से भी क्वेश्चन कर सकते हो, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the breath test conducted by police to check drunken driver has which on the following on the filter होता है, आपने देखा होगा उनके पास एक छोटा सा मटेरियल मतलब डिवाइस होता है जिनमें वो फूकने को कहते हैं, तो जो फूंक मारने के बाद इनमें जो एक केमिकल होता है जो कि जिससे रिएक्ट करके बताया जाता है, तो ये केमिकल में प्रेजेंट होता है, वो होता है ऑप्शन ए वाला, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, क्वाइट फैक्चुअल बट कैन बी आस्क्ड इन फर्दर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, glucose is converted into ethyl alcohol by the enzyme and the name of that enzyme is nothing but invertase. Okay, so answer is option B. Let's come to sorry not invertase नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जैमेज। ओके, ग्लूकोज को अगर हम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें जो एंजाइम का यूज करना होगा वो होगा जैमेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइम वाटर turned milky by, very simple question, answer is option B, CO2. Next question, the incomplete burning of petrol and diesel produces, okay, so incomplete burning will produce carbon monoxide, okay, because here CO only है, अगर ये पूरा बर्न हो जाता तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है लेकिन उसके अलावा कुछ जो कार्बन आधा बन रह जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the pH of a solution changes from 3 to 6, किसी सॉल्यूशन का pH दो सॉल्यूशन है, तीन मतलब 3 से 6 हो जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ये 3 का मतलब होता है ये 10 टू द पावर 3, ओके, और ये 10 टू द पावर 6, मतलब चेंज कितना आ रहा है, चेंज आ रहा है 10 टू द पावर 3 का, 10 टू द पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। सो अगर देखा जाए तो टोटल 1000 टाइम्स। ओके, अब ये यहाँ तो डिक्रीज दे रखा, तो आंसर तो हमारा यही होगा। अगर सपोज डिक्रीज और इंक्रीज दोनों होता ऑप्शन में, तो ये बात याद रखना है कि 0 से 6 की ओर इधर जाएंगे तो एसिडिटी डिक्रीज करेगी, इस साइड जाने से 0 की ओर जाने से एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, और वही बेसिसिटी के केस में क्या होता है, 14 की ओर जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। ओके, दैट मीन्स आप न्यूट्रल पोजीशन से जितना दूर जाओगे उतना बेसिसिटी और एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of sand and naphthalene can be separated by, okay, that means आपको बालू और नैप्थलीन यानी कि कपूर, आपने कपूर देखा ही होगा पूजा की आरती में, तो इसको अगर अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप जानते हो कि जब आप कपूर को जलाते हो तो ये सीधा गैस बन जाता है, ये लिक्विड के बजाय सॉलिड से सीधा ये गैस बन जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन। So when you will heat this mixture, the naphthalene balls will be converted from directly solid to gas, and you will get only sand, and hence it will be separated. So you can separate it by the process of sublimation. Next question, the number of sigma and pi bonds in benzene. Okay, so let's draw a structure of benzene. ओके, तो ये है हमारा बेंजीन। तो अब इसमें सिग्मा एंड पाई, तो आपको ये पता होना चाहिए सिग्मा जो है ये सिंगल बॉन्ड को कहते हैं, ठीक है, और पाई जो है ये डबल बॉन्ड को कहते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3, तो पहला ऑप्शन जो है 3 आना चाहिए। ठीक है, 3 वाला 2 ऑप्शन, तो ये तो कट गया। ठीक है,
नाउ वी आर लेफ्ट विथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। नाउ सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर कोई जिसे नहीं पता है तो वो तो ऐसा करेगा 1 2 3 गिन के 3 में 3 मार्क कर देगा, बट ये नहीं, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये तो हो गया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो सिंगल बॉन्ड है इनमें भी एक एक हुआ 4 5 6, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखो कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, ये 4 तरफ से होना चाहिए, तो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन एक यहाँ ये हाइड्रोजन से होगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन एक यहाँ होगा, ठीक है, एक ये। तो इस तरह से 6 हाइड्रोजन के साथ 6 सिंगल बॉन्ड, तो 6 और पहले तो 6 थे 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया आर, ठीक है। अगर इस आपको बस अगर फॉर्मूला याद होता दैट द फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2, now you can get the answer. There is nitrogen, there is hydrogen, there is carbon, there is oxygen, so your answer is option D, carbon hydrogen nitrogen oxygen. Next question. The poorest conductor of heat among the following is, the poorest conductor of heat among the following is mercury. ये आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में जाओगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट मर्क्यूरी इज द metal which is the poorest conductor of heat, so answer is option C. Next, vitamin which is effective in blood clotting, option D, very easy question, vitamin K. Next question, the female sex hormone, it is nothing but estrogen, and similar to that male sex hormone is testosterone. Next question, the Nobel Prize for developing treatment of Parkinson's disease was given to, so the answer is option A, a factual question. Next question, the malfunctioning of thyroid gland is due to deficiency of, so it is due to deficiency of option C, iodine. Okay, आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, और वही थायराइड ग्लैंड में जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी से कारण है। थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के पास मौजूद होता है, तो वही गले पे आप घेंगा रोग में बड़ा सा पोर्शन आप देखते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The sensitive area of the human tongue to bitterness, okay, so आप ये सवाल जो है ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, ठीक है। आप मैं अगर अपने ऑब्जर्वेशन से बताऊं तो मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति तीखा खाना खाता है तब उसके टिप में असर होता है, ठीक है। और अगर वो बिटर, ठीक है, बिटर खाना खाता है तो उसे जो है पोस्टीरियर यानी कि पीछे के पार्ट में होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर इज स्टेम एंड नॉट अ रूट, ठीक है। जिंजर जो कि यानी कि अदरक को हम स्टेम बोलते हैं, तना, रूट नहीं बोलते हैं। तो उसका कारण ये है, ऑल्दो इट स्टोर्स फूड बट इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि स्टेम में ही नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जो होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वीटेस्ट शुगर अमंग द फॉलोइंग, आंसर इज फ्रुक्टोज। आप ऐसे याद रख सकते हो, फ्रूट जो होता है काफ़ी मीठा होता है, इसलिए स्वीटेस्ट शुगर इज फ्रुक्टोज, एंड दिस क्वेश्चन इज क्वाइट कॉमन, इट हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशन, सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नाउ a very tricky question, I also made this question wrong, the among the following which is not a true fruit, so answer here is option A, apple, okay। so आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे यार एप्पल तो फ्रूट होता है, ठीक है, मगर मुझे भी नहीं पता था एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं होता, ठीक है। सो आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। लेग्यूम्स आर हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, अब मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। प्रोटीन यानी कि जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में लेग्यूम्स यानी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इस तरह का होता है, ठीक है, लेग्यूम्स बोलते हैं। सो आंसर ऑप्शन बी, प्रोटीन, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोव, a spice is obtained from which part of plant, a very much repeated question, answer is option B, flower bud, मतलब कली से, फूल की कली से क्लोव बनाया जाता है, क्लोव यानी कि लौंग, ठीक है। तो 30 के 30 सवाल समाप्त हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है,
और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ा उस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, ठीक है। और ऐसे ही मैं और कंटेंट खास करके इंग्लिश में लाता रहूँगा, ठीक है ना। और ऐसे हिंदी मीडियम वाले दुखी ना हो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स जो कि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले जिनको हिंदी में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो वो मेरा कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको और कोई सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट के थ्रू दें। आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट के थ्रू, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल PYQ अकेडमी है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा, और साथ में ही आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी उस चैनल के माध्यम से दी जाती है, ठीक है। और कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इस परीक्षा से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो है कि आपको मेरी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये अप्रैल महीने भर 30 अप्रैल तक मैं सारा PYQ कंप्लीट कर दूँ, ये मेरा इस महीने का टारगेट है, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर में अंत तक जुड़े हुए तो thank you for keeping patience, and thank you so much for watching PYQ Academy. See you in the next video.